Good morning, 9th standard. Hope you all are safe. So today we are going to start with our last chapter, that is working of institution. Now in this we are going to read that how the government works, how inside that we just know कि elections होते हैं, minister choose होते हैं, but how they work, that are not visible to us, that are not anything. Nobody informs us that yes we are going to start with this. एक ऑर्डर पास होता है, फिर वो पार्लियामेंट में डिस्कस होता है, बोथ हाउसेज उसको डिसाइड करते हैं इट शुड बी पास और नॉट. अगर सेटिस्फाई देन इट इज़ पास एंड देन इट इज़ ऑन आज, फिर वो हम पे एग्जीक्यूट होती है. तो किस तरीके से वो सब काम होंगे इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू रीड दैट ओनली. सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ पेज नंबर 79, गवर्नमेंट ऑर्डर. So government order means in this paragraph we are just going to read the topic office memorandum. Office memorandum क्या है? It is an order which was issued by the government. So please underline the first 3 lines. On August 13, 1990, the government of India issued an order. It was called an office memorandum. When it was passed, August 13, 1990 में ये पास हुआ था. तो बेसिकली ये क्या है, अगर हम इसको एग्जांपल के तौर पे समझें तो हम ये समझ सकते हैं जैसे स्कूल में हमारे प्रिंसिपल एक सर्कुलर पास करते हैं जिसमें आपने देखा होगा एक सीरियल नंबर और सब चीज़ें लिखी हुई रहती है, तो वो हमको दी जाती है और वो हम आपको बताते हैं. ठीक है, तो उसी तरीके से गवर्नमेंट में भी जो भी ऑर्डर्स होते हैं दे आर हैविंग सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स, लाइक उनका OM नंबर होता है, किस डेट को उन्होंने स्टार्ट किया वो लिखा होता है. एवरीथिंग इज़ मेंशन इन दैट सो दैट एक रिकॉर्ड रख सके. दैट इज़ व्हाई इट इज़ देयर. सो अगेन आई जस्ट वांट टू रिपीट इट. ऑफिस मेमोरेंडम अगस्त 13, 1990 में पब्लिश हुआ था, इशू हुआ था बाय द गवर्नमेंट ऑफिशियल दैट इज़ हैविंग सेवरल कैरेक्टरिस्टिक्स. सो प्लीज़ अंडरलाइन दैट इज़ ऑन पेज नंबर 79. आई एम शोइंग यू दैट ऑल्सो. Please learn it. I think it is visible. Yes. Underline it so that if it comes in MCQ, so you will be able to write the answers of the MCQs. Okay. Now the next which we are going to cover is on page number 80. What was there in that order? उस office memorandum में क्या था? In that order, an announcement was there that 27% of the vacancies in civil post which comes under government are reserved for socially educationally backward classes. That was कि the society that is socially educationally backward classes, for them the government had the government had decided to reserve some vacancies for them, so that is 27%. Again underline it, that number of percentage which a government has issued for SEBC classes. The percentage was 27% because they just want equality in the society. They does not want that somebody should think that we are neglected by the government. So that is why they are just doing every time you can see that there are some certain changes जिससे कि जो पिछड़ा वर्ग है उनको कभी एलिनेशन वाली फीलिंग ना हो. So that is why they are doing such things for the backward classes. So 27 seats they have reserved for civil post, for jobs, for reservation, everything they have done it. The person who belong to backward classes were eligible for this quota of 27% jobs. Only those who belong to this caste, only they are eligible. Not the other caste, that is general. They are not included in this. So the people who belong to backward classes, only they have got this 27% of vacancies. Okay. Now the next heading is decision making. First of all, from this paragraph, write one question, that what was office memorandum contains. What is office memorandum is all about. This is the answer of that. This is a paragraph and question I have written. So try to get questions from the paragraph itself. If you learn paragraph wise question and answers, I don't think that you need a refresher, a book, or anything like that. कोशिश करिए, बुक पढ़िए और बुक से ही क्वेश्चन फ्रेम करेंगे तो आई थिंक 10th के लिए आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी रहेगा टू गेट आउट, टू टेक फिलअप्स एंड MCQs. और आई थिंक 10th का फिर रिजल्ट भी बहुत अच्छा आएगा इफ़ यू इनकलकेट दिस हैबिट इन यू. सो द नेक्स्ट इज डिसीजन मेकर्स. नाउ डिसीजन मेकर्स दैट वी नो दैट
देयर इज़ प्रेसिडेंट, देयर इज़ प्राइम मिनिस्टर, देयर आर पार्लियामेंट विच कंसिस्ट ऑफ 2 हाउसेज, लोकसभा एंड राज्यसभा। ये सारी चीज़ें हैं जिससे वो क्या होती है, ऑर्डर पास होके फिर लोगों तक आती है, ठीक है। तो जो फर्स्ट ऑफिस मेमोरेंडम था जो कि अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए था, फर्स्ट पब्लिश हुआ था 1979 में। इन दिस ईयर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैड अपॉइंटेड अ सेकंड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन 1979 में। प्लीज़ अंडरलाइन द ईयर 1979 में गवर्नमेंट ने एक और बैकवर्ड क्लासेस के लिए एक ऑर्डर निकाला था जिसको हेड किया था बीपी मंडल ने। तो जनरली इस कमीशन को हम मंडल कमीशन भी बोलते हैं, ठीक है ना। इसमें एक डिफरेंट क्राइटेरिया है। ऑब्वियसली अगर आप एक भी चीज़ लोगों के लिए, हित के लिए सोच रहे हो तो आपको उसके लिए बहुत डिस्कशंस की ज़रूरत होती है, सर्वे की ज़रूरत होती है कि ये कितने % हैं लोग जो SC ST एंड OBC के अंदर आते हैं, और इसमें से कौन से जो सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड है। हर एक चीज़ों का सर्वे करना पड़ता है, बिना उसके हम एक एस्टिमेट लगा के कुछ भी चीज़ें नहीं कर सकते। सो इट वॉज एन criteria to identify the socially educationally backward classes and recommend steps to be taken for their advancements. It's not कि somebody has said कि yes I belong to SC ST, चलो भैया इसको फिर ये जो right है वो दे दो। No, they used to check each and everything, yes कि this documents which are made by these people it's really true or not. So ये सारी चीज़ें किसके अंदर में आई थी, जब हमने ये ऑफिस मेमोरेंडम में एक क्या कहते हैं, एक इशू निकाला था, दैट इज़ फॉर SEBC क्लासेस के लिए 27 सीट्स वैकेंसीज़ के लिए। जब हमने निकाला था तो हमने बहुत सारे सर्वे किए थे। वी हैव पुट सर्टन क्राइटेरिया दैट येस द पर्सन शुड फॉलो ऑल सच थिंग, देन ओनली ही कैन बी कॉल्ड एज दिस। लाइक फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा, हिंदी मीडियम मूवी देखी थी ना, उसमें आपने देखा होगा कि दैट इमरान खान फर्स्ट वो पहले व्हेन दे वर रिच, बट उनको जब उनको स्कूल में नहीं मिल रहा था एडमिशन, देन क्या हो गए, वो कन्वर्ट हो गए, फिर वापस वो गरीब बन गए। सो एक स्कूल के जो एक टीचर थे, ही वॉज ऑन सर्वे की येस दैट पर्सन इज वो RT में आ रहे हैं या फिर नहीं आ रहे। ही वॉज देयर टू चेक द डॉक्यूमेंट्स ऑफ दैट। तो उसी तरीके से गवर्नमेंट के सारे काम चेकिंग पे होते हैं, वो सर्वे किए जाते हैं और पता लगाया जाता है कि येस कि दिस पर्सन इज belongs to SC ST or not. Now one of these was 27% of government jobs were reserved for socially and educationally backward classes. The report and recommendation were discussed in the parliament. Now order तो निकल गया, क्राइटेरिया भी मेंशन्ड हो गया कि यस भाई ये, और 1980 में इसकी एक रिपोर्ट हमने दी। अब रिपोर्ट कहाँ पे देना है, डिस्कशन हो गया मिनिस्टर्स में, अब वो कहाँ पे आता है, पार्लियामेंट में आता है, ठीक है। कहने को बोलते हैं दैट राज्यसभा इज़ द सुप्रीम हाउस, बट सारे जो चीज़ें होती हैं वो लोकसभा में ही डिस्कस होती है ना। जब ये दोनों के दोनों हाउसेस अपना से दे आर एग्री टू दैट थिंग्स, तब वो लोगों में जारी होता है ना। अब वो सब चीज़ हो गई, अब वो हाउस में आ गया। फॉर सेवरल ईयर्स मैनी पार्लियामेंट्रिशियंस एंड parties kept demanding the implementation of commission recommendation. Everybody was saying that yes it should be recommended. Then came the Lok Sabha election for 1989. जब लोकसभा के इलेक्शंस हुए, जहाँ पे हमारे प्राइम मिनिस्टर्स चूज होते हैं। इन दिस इलेक्शन मैनिफेस्टो द जनता दल प्रॉमिस दैट इफ वोटेड टू पावर इट वुड इम्प्लीमेंट द मंडल कमीशन रिपोर्ट। नाउ 1980 में वापस से ध्यान से सुना, 1980 में जो रिपोर्ट थी, जो ऑर्डर था, वो प्रॉपर तरीके से बन गया था। 1989 में जब लोकसभा के इलेक्शंस हुए तो उन्होंने बोला कि अगर आप हमें जिताते हैं तो हमने जो आपसे वादा किया है कि मंडल कमीशन जो SEBC के लिए है वो हम क्या करेंगे, लागू करने शुरू हो जाएंगे। दीज आर द स्लोगन्स विच अ पार्टी जनरली डू व्हेन दे आर गोइंग फॉर द इलेक्शंस, कि आप हमको वोट दीजिए, हम आपके साथ ये कर देंगे, हम आपके लिए ये करेंगे, हम आपके लिए वो करेंगे। तो उसी तरीके से भारतीय जनता दल ने बोला कि यस आप हमको वोट दीजिए, हमको जिताइए, तो हम मंडल कमीशन को क्या करेंगे, रिकमेंड करेंगे, पास कर देंगे। जनता दल did not form the government after this election. Its leader VP Singh became the prime minister. Several developments took place after that. Now उसके बाद क्या हुआ, जनता दल जीत गई और VP सिंह प्राइम मिनिस्टर बने, और उन्होंने क्या किया, इस जो चीज़ें थी उसको कहाँ पे लेकर आया, पार्लियामेंट हाउस में, जहाँ पे डिस्कशंस हुए। दैट वी आर गोइंग टू स्टडी टुमारो।
सो आज हमने क्या पढ़ा, एक ऑफिस मेमोरेंडम पास हुआ था गवर्नमेंट की तरफ से जिसमें एससी बीसी के लिए 27% सीट्स रिजर्व थी। 1979 में एक और सेकंड बैकवर्ड क्लासेस के लिए रिपोर्ट की गई थी जिसका नाम मंडल कमीशन भी रखा गया था बिकॉज वो बीपी मंडल के अंडर में था। 1980 में वो रिपोर्ट तैयार हो गई थी जिसमें 27% वोट गवर्नमेंट जॉब्स मिल रही हैं किसको, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस को। कुछ सालों बाद, बहुत सालों बाद, जब 1989 में लोकसभा के इलेक्शंस हुए तो जनता दल ने बोला कि आप हमको वोट दीजिए तो हम मंडल कमीशन को क्या करेंगे, लागू करवाएंगे। जनता दल जीत गई इलेक्शंस और उनके लीडर कौन थे, वीपी सिंह, जो प्राइम मिनिस्टर बने और फिर उन्होंने जो चीज़ें मंडल कमीशन उसको फर्दर देखा जो हम डिस्कस करेंगे टुमारो मीटिंग में। ओके, थैंक यू क्लास।